Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners, will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371-7117. Listeners calling from outside Delhi will have to prefix the Delhi STD code 011 before the numbers. I am Anubha Rohatkin. With me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आज ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. Domestic stocks log losses of more than 1%. Sensex finishes below 52,600. Nifty settles below 15,800 level. Rupee weakens 31 paisa against the US dollar. And Brent crude prices decline to trade around $71.60. घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज। सेंसेक्स 52,600 से नीचे हुआ बंद। निफ्टी 15,800 के स्तर से नीचे आया। रुपया डॉलर के मुकाबले 31 पैसे कमजोर और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $71.60 प्रति बैरल के आसपास। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट का असर सेंसेक्स और निफ्टी पर दिखाई दिया। सेंसेक्स लुढ़ककर 52,600 जबकि निफ्टी फिसलकर 15,800 के स्तर से नीचे बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1.1% के नुकसान से 587 अंक लुढ़ककर 52,553 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.07% गिरकर 171 अंक के नुकसान से 15,752 पर आ गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.58% नुकसान में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.31% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today witnessed losses of more than 1%. Both stocks declined in sync with fall in the global equity markets. The Sensex fell below 52,600 while the Nifty slipped below 15,800 level. The BSE Sensex plunged 587 points or 1.1% to finish at 52,553. The NSE Nifty declined 171 points or 1.07% to settle at 15,752. In the broader market at BSE, the mid-cap fell 0.5% and the small-cap index ended 0.31% down. In the Sensex pack, shares of 26 companies fell while 4 gained. NTPC was the biggest gainer as it surged 1.9%, followed by Nestle India, which gained 0.6%. On the other hand, HDFC Bank plunged 3.3% and IndusInd Bank declined 2.8%. HDFC fell 2.2% and Axis Bank slipped 2.1%.
Maruti and Bajaj Finance both ended 1.9% low. In sectoral indices, shares of 15 out of 19 sectors declined. Realty and healthcare sectors fell 0.2% each. On the other hand, finance and BankX both declined 1.8%. Metal fell 1.4% and auto sector stocks slipped 1.1%. The overall breadth of the BSE trade was marginally positive as shares of 1,757 companies gained while 1,571 fell. Shares of 164 companies remained unchanged. And we've already been joined online by our first caller of the day, Mr. Shravan. जी श्रवण कुमार जी नमस्कार, दिल्ली से बोल रहे हैं आप, अपना सवाल पूछिए। अच्छा जी, सवाल ये है कि ये यस बैंक का शेयर जो खरीदा है जब ये जो शुरू हुआ था कोरोना, तो उसके बारे में वो कहते हैं आपको 223 में जाकर के आपको सेल करना पड़ेगा यस बैंक। तो आप इसमें क्या जानना चाहते हैं कि आप कब इसको बेच सकते हैं? चाहते हैं कि यस बैंक का कब तक हो जाएगा सेल करने के लिए? हेलो जी, यस एक्चुअली गवर्नमेंट ने यस बैंक को के इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसमें एक कंसोर्शियम बना करके दिया था और कंसोर्शियम ने उसमें इन्वेस्ट किया था पैसा। तो जाहिर सी बात है जो उसकी कंडीशंस है वो तो मीट करनी पड़ेगी, अदरवाइज एट वन टाइम शेयर तो बहुत नीचे चला गया था और ये गवर्नमेंट का स्टेप था जिसकी वजह से अभी इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अभी सुरक्षित है और उनका पैसा भी सुरक्षित है। नेचुरली मार्केट विल डिसाइड ये कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट दे हैव टू मीट द कंडीशन फिक्स्ड बाय द रेगुलेटर्स। जी, पुणे से सुरेश कर्वे फोन लाइन पर हैं। हेलो सुरेश जी। हेलो जी, हेलो। जी हाँ साहब, लाइन पे हूँ मैं। जी हाँ, आप सवाल पूछिए अपना सुरेश कर्वे जी। अच्छा, नहीं मैं लाइव सुन रहा था रेडियो पे, मुझे लगा मेरा पहले नाम दिया जाएगा। जी नहीं, आप अपना सवाल पूछिए। ओके सर, नमस्ते, मैं सुरेश कर्वे बोल रहा हूँ पुणे से। जी। मैं आपका बहुत रेगुलर लिस्नर हूँ पिछले 7-8 साल से और आपकी टीम फाइनेंशियल लिटरेसी में और मार्केट का डिटेल एनालिसिस में बहुत अच्छा काम कर रही है। जी धन्यवाद। जी हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उस पे जो 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। जी। हेलो। हाँ, आप सवाल जारी रखिए। आप, हमें आवाज मिल रही है आपकी। जी हाँ, तो वो जो 2.5% इंटरेस्ट मिलता है वो खाली आईपीओ में अप्लाई करने से मिलता है या अगर मैं मार्केट से सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड फंड खरीदूंगा तो भी मिलता है? ये मुझे क्वेश्चन था साहब। ये तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जो भी इंटरेस्ट है वो तो आपको जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास बॉन्ड्स हैं तो यू हैव टू अवेल द इंटरेस्ट बेनिफिट। जी, अब हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से हीना लाल। आपका स्वागत है कार्यक्रम में, इसमें सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी, मैं हिरालाल महतो सुल्तानपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी पूछिए, अपना सवाल पूछिए। जैसे ई गोल्ड आजकल बिक रहा है तो ऐसे इनके लिए कैसा कभी हो सकता है या होना चाहिए? आप अपना सवाल फिर से दोहराएं और अपना घर, आपका जो रेडियो है सेट है उसको प्लीज पहले बंद करिए आपके और फिर सवाल पूछिए। आपका रेडियो सेट ऑन है, फिर से पूछिए सवाल। जैसे आजकल ई गोल्ड मिल रहा है ना, जैसे जी हाँ, ई गोल्ड। हाँ ठीक है सर। हाँ। खरीद रहा है आजकल, तो क्या जमीन के लिए भी ऐसा हो सकता है? ई अर्थ के लिए जमीन खरीदने के लिए आप जानना चाह रहे हैं कि जमीन खरीदने के लिए भी क्या ई गोल्ड की तरह कोई एक सुविधा हो सकती है? नहीं, देखिए ई गोल्ड में तो जो है आपका तरह का डीमेट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड के अगेंस्ट, उसके प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे, उसका आपको एडवांटेज मिलता है जो भी बेनिफिट है। तो आपको उसको नहीं रखना होता है, फिजिकली नहीं रखना, आप उससे बचते हैं उसकी सिक्योरिटी से और बाकी चीजों से। बट जमीन का तो ये संभव नहीं है इस तरीके से ई अर्थ करके कोई या लैंड कोई इस तरह का पूल बने और उसमें लोग खरीदें। आई डोंट थिंक इस तरह का कोई ऑप्शन नियर फ्यूचर में मुझे दिखाई।
Let's move on with some more economic and business news. The rupee today weakened 31 paisa to close at 74 rupees and 88 paisa against the US dollar. The local unit depreciated amid strength in the American currency and plunge in the domestic equity markets. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, rose 0.32% to trade at 92.98% in intraday trade. Mr. Singh, we just, before we took our calls from our listeners, we were talking about the Sensex. The Sensex, both the indices today saw more than 1% fall. I mean, given that on Friday, both the indices were, touched a record all-time high during intraday trading. Today, it was a major fall. What do you attribute it to? Basically, market followed the global market trend. You see, even on Friday, US market went down, and today, all these Asian markets, like Japan, Hong Kong, and other markets, were down and closed in red. So, due to this higher incidence of coronavirus infection and the fear of basically lockdowns and the basically halt of economic activities, all these things are impacting the market as well as some inflationary pressure also the reason behind that. जी, और एशियाई बाजारों की प्रदर्शन पर नजर डालें तो आज वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच एशियाई शेयर बाजार भी नुकसान में रहे। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने और मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंका से निवेशकों ने जोखिम नहीं लिया। हांगकांग का हैंगसेंग आज 1.8% घाटे में रहा। जापान का निकेई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स दोनों में 1.3% की गिरावट दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% लुढ़क गया और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स अपने पूर्व स्तर के आसपास ही बंद हुआ। अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजार भी नुकसान में कारोबार कर रहे थे। लंदन का FTSE 100, फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का DAX 2% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। And now we have been joined online from Mumbai by Mr. Hasmukh Dedia. Mr. Dedia, welcome to the program. अपना सवाल पूछिए, please. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मेरा प्रश्न ये है कि जो अपना ये मनी प्रिंटिंग जो यूएस ने की है वो कब खत्म होगी? थैंक यू। मनी बिल्डिंग, money printing, he's asking about, the US government printing the currency notes. He wants to know when it will end. No, even actually US government is very clear that we will keep this basically easing of this liquidity will continue because they feel that it is still required to support the economy. And this FOMC meeting is going to happen. Let us see what comes to the Federal Monetary Committee. Yeah, in fact, the U.S. Fed chair on last week, while testifying to the Congress, also said that Jerome Powell said that the U.S. Fed will continue to support the economy, and he kind of, downplayed all these fears of inflation, rising in there. Yeah. And now we have the next caller, Dharamveer from Delhi. Dharamveer ji, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। नमस्कार पूरी टीम को, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। जैसे कि हम ये आपका कार्यक्रम सुनते हैं, जिज्ञासा होती है कि हम इस चीज में भी हम कुछ अपना इन्वेस्ट करें। जैसे कि मैंने किसी मैनेजर से बात करी बैंक की, तो हमने पूछा कि इसमें हम क्या करें, तो उन्होंने बोला कि आप इसमें पैसा लगाएं म्यूचुअल फंड में। तो एक दूसरे बैंक के मैनेजर बोलते हैं ये सब बेकार है, आप इसमें ना लगाएं, आप ये करें। और कृपया करके आप मुझे ऐसी चीज बताएं, कैसा नंबर बताएं जहां हम ऐसी जानकारी ले पाए ठीक, जो हमें गाइड कर पाए कि जहां हम अपना ठीक से कर पाए। और नए श्रोता अगर इसमें पैसा लगाना चाहें, कितना पैसा स्टार्ट से लगा सकते हैं, और इसके लिए सही जानकारी, सही ज्ञान मिलता है। धन्यवाद जी। धर्मवीर जी, सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में निवेश के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बहुत ही विस्तार से जानकारी हमारे रविवार के मार्केट मंत्र कार्यक्रम में दी जाती है। उसमें विशेषज्ञ जुड़ते हैं जो म्यूचुअल फंड के में निवेश के बारे में जानकारी देते हैं, और बाकी आपका जो सवाल है उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ आपको बताते हैं। जी हरवीर जी।
देखिए वो बेसिकली उनका जानना है कि हम अपना जो सेविंग्स है या जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसका क्या करें, उसका उनका बेसिकली क्वेश्चन है बेहतर क्या होगा। तो एंड उन्होंने बैंक के जो ऑफिशियल चल पे अप्रोच किया। जाहिर सी बात है कि बैंक जो उनका बिजनेस है और वो तो चाहेंगे कि उनके यहाँ जो डिपॉजिट्स हैं उसमें इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो ये इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है इसका उनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस क्या है, उनका फिर ये इन्वेस्टमेंट के लिए टेन्योर का उनका क्या प्लान है और उनका रिस्क फैक्टर क्या है, कितना रिस्क ले सकते हैं। तो उसी के हिसाब से उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड वट एवर बेसिकली देखिए आप प्रीशियस मेटल है या बैंक डिपॉजिट्स में, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स में या स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में ये बिल्कुल सलाह दी जाती है छोटे इन्वेस्टर को कि वो सीधे ना जाए, इट इज बेटर कि वो म्यूचुअल फंड रूट से जाए। तो वहां पर उनके एक्सपर्ट जो होते हैं उनके पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल होगा वो वहां पर सक्षम लोग होते हैं और उसका रिस्क भी काफी उनका उससे कम होता है, बिकॉज जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगते हैं, उसके लिए वो एक तरीके का पूरा बकेट बनाते हैं और उसमें जा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये अब इनको देखना पड़ेगा कि कहाँ वो चाहते हैं और कितना उनको इन्वेस्टमेंट करना। ये जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट जो वन ऑप्शन, बट अभी पिछले कुछ दिनों से रियल एस्टेट और आपका बुलियन से लोग जो है प्रीशियस मेटल से दूर जा रहे हैं क्योंकि उसमें रिटर्न बहुत बेहतर नहीं है। एंड हमारे जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स हैं वहां पर भी अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी नीचे आए हैं तो ये तुलनात्मक रूप से जो मार्केट के रिटर्न्स हैं कुछ मामलों में बेहतर है, लेकिन वह रिस्क है, उस हिसाब से इनको फैसला लेना पड़ेगा। जी, और अब मुंबई से अपने सवाल के साथ हैं गोकुल महाजन। गोकुल महाजन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। जी मैं गोकुल महाजन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आई एम लिसनर ऑफ मार्केट मंत्रा सिंस मोर देन 7-8 ईयर्स और ये पहली बार मैं आपको फोन कर रहा हूँ। जी, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है एंड रियली थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग अप एवरीवन एट सेम लेवल विद योर एक्सपर्ट्स। मेरे 2 सवाल है। हमारे एक लिसनर जो थे मुंबई से मुजाहिर खान जी, आजकल उनका आवाज नहीं आ रहा है, तो आई वुड लाइक टू नो थ्रू यू कि मुजाहिर खान की तबीयत कैसी है। जी, और आपका दूसरा सवाल? गोकुल जी आप अगर सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए दूसरा। लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। एंड नाउ वी हैव और अब मुंबई से ही एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रत्नाकर। रत्नाकर जी कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछे। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग। मेरा सवाल है अभी डॉलर रूपी का रिलेशन में $1 के प्रति 74 रुपीज का करीबन रुपए का वैल्यू है जी। तो फिर भी जो आईटी सेक्टर के शेयर्स हैं वो तो बढ़ रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि आरबीआई की नजरों में व्हाट विल बी द रुपी और डॉलर का जो रिलेशन है उसका स्टैंडर्ड रुपीज कितना रहना चाहिए? 74 के नीचे आना चाहिए कि 74 ये सही? देखिए रुपये के लिए कोई ऐसा फिक्स एक्सचेंज रेट का कोई लेवल नहीं है, मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। हाँ, अगर अनयूजुअल ट्रेंड कोई होता है तो वहां फिर आरबीआई इंटरवीन करता है। अदरवाइज जो मार्केट में जिस तरह की डिमांड एंड सप्लाई है उसी से रुपये का जो एक्सचेंज रेट है वो तय होता है। Let's move on to the next story. India has emerged as the 5th largest foreign exchange reserves holder in the world after China, Japan, Switzerland and Russia. In a written reply in Lok Sabha, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary said the country's forex reserves stood at around $609 billion on 25th of last month. He said the country's foreign exchange reserves position is comfortable in terms of import cover of more than 18 months and provides cushion against unforeseen external shocks. Mr. Chaudhary said the government and the Reserve Bank of India are closely monitoring the emerging external position, calibrating policies or regulations to support robust macroeconomic growth. He said in 2020-21, India's balance of payments recorded surplus in both current account and capital account, which contributed to the increase in foreign exchange reserves during the year. Mr. Singh, how do you view this particular story that India has emerged as the 5th largest foreign exchange reserve holder in the world? So overall, I mean, it is a reflection on the solid the economy of the country and the way the positives of the economy.
Yes, it shows a positive trend because a lot of inflow has come through FDI. That is more important. And our remittances as well as our export earnings are also increasing. And it was one time in 1991 we did not have even 15 days reserve for imports. But right now we are the 5th largest forex reserve country. So that sends a very good message for the sound economic health and economy. जी, पंकज मेहरा दिल्ली से सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी, पंकज जी। हाँ जी जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मार्केट में बहुत बधाई, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वेरी एजुकेटिव। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है पंकज मेहरा जी। आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है जी, धन्यवाद। एजुकेटिव है एंड मार्केट में यूनिक प्रोग्राम है। हम सब ये चाहते हैं कि 1 आवर तो हो कम से कम। जी, सवाल आपका आज क्या है? हाँ, सवाल मेरा ये है कि अभी मार्केट का जो इंडियन शेयर मार्केट है उसमें क्या करेक्शन का कुछ लग रहा है या कंसोलिडेशन का कुछ लग रहा है, और कौन से सेक्टर में बेटर है इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा? जी, देखिए, ये जाहिर सी बात है कि आज जिस तरह का मार्केट लगातार स्ट्रेंथ गेन कर रहा था, लेकिन आज उसमें काफी गिरावट आई है और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस का नया एक काफी देशों में तेजी से बढ़ा है नया वेरिएंट का, उसको लेकर के थोड़ा आशंकित है जो इन्वेस्टर्स या इकोनॉमीज के थोड़ा उसमें एक्टिविटीज कम होने का डर हुआ है। जैसे उसका रिफ्लेक्शन आज ये देखा है कि इवन ऑयल प्राइसेस तो ये अभी एक तो ये फैक्टर है कि आपको थोड़ा सा कोशिश रहना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट को लेकर के। तो करेक्शन में नहीं तो बट वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है, क्योंकि जो ग्लोबली बाकी दूसरे ट्रेंड है उसके आधार पर ये तय होगा। बाकी अभी जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी से आ रहे हैं उसमें कुछ रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। एंड जो एग्रो से रिलेटेड कंपनीज है वहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी भले मानसून में बीच में थोड़ा एक गैप आया है बट इट हैज रिवाइव। तो बाकी सेक्टर के मुकाबले लगता है कि रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी विल बी बेटर। तो उस हिसाब से आप की तरफ देख सकते हैं। प्लस अगर रुपी डेप्रिशिएट होता तो हमारे जो IT स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा एक फायदा मिलता है। और अब हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं गौरव। कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार एंड आई विश मुजाहिर खान ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। उनकी आवाज सुनने को हम लोग आतुर हैं। और सर मेरा सवाल है हरवीर जी, ऑलरेडी 1960s हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी प्रोडक्शन की, गेहूं और चावल और दालें बहुत कम हो गई थी हमारे यहाँ, लेकिन अब हालत बहुत अच्छी है और हमारी जनसंख्या इससे शायद से कम ही होगी, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो अगर जनसंख्या कम होगी तो गलट आ जाएगा, तो क्या करना चाहिए? रूरल एम्प्लॉयमेंट, जो ओवर प्रोडक्शन होगा उसका क्या कर सकते हैं? क्या व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर फ्यूचर नेक्स्ट 10-20 years when production will be high and population will grow and demand will come down? So what can be done in villages so that people get employment and rural employment क्या होगा? बात इसमें है, एक तो हमारा जो वेरिएबल लैंड है वो तो बढ़ नहीं रहा है, वो भी थोड़ा श्रिंक हो रहा है, क्योंकि दूसरी एक्टिविटीज में उसका यूज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर हाउसिंग में और बाकी जगह। दूसरी ये है कि अभी हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल है उसमें कभी बढ़ने की गुंजाइश है। एक फैक्टर और ये भी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज डिप्लॉय होंगे तो पर हेक्टेयर यील्ड हमारा बढ़ेगा। तो आपका मेजर कंसर्न है कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको क्या होगा। अब यहाँ पर डाइवर्सिफाई करने का एक लगातार किसानों को उसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और कुछ स्टेट्स में कहा है कि अगर फूडग्रेन की जगह आप दूसरा क्रॉप ग्रो करेंगे तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ 10,000 रुपया पर एकड़ दे रहा है और दूसरे कुछ राज्य दे रहे हैं, हरियाणा ने भी शुरू किया है। तो उसमें कोशिश है कि जो बेसिक फूडग्रेन क्रॉप्स है फार्मर्स वहां से डाइवर्सिफाई करें। जैसे पल्सेस में हम लोग अभी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, अभी भी हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो फार्मर्स कैन गो देयर। एडिबल ऑयल में बहुत गुंजाइश है कि फार्मर्स ऑयल सीड की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारा 2/3 जो रिक्वायरमेंट है वो इम्पोर्ट से पूरा होता है। तो स्टिल काफी गुंजाइश है, बट उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाना पड़ेगा, और ये इसके लिए
जो प्लानिंग है वो भी है, इंसेंटिव देने की बात भी हो रही है, फार्मर्स को भी एजुकेट करने की कोशिश हो रही है, बट उसमें उसको तभी जाएंगे जब उसको इकोनॉमिक गेन दिखेगा। क्रॉप प्राइस पैरिटी में उनकी आमदनी पर तो पर्टिकुलर असर तो नहीं आएगा, बट डेफिनेटली दे विल मूव। जी, और अब हमारे अगले कॉलर थाने से ललित फोन लाइन पर हैं। हेलो, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। जी, गुड इवनिंग सर, कैन यू गाइड ऑन सम कोर्सेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन शेयर मार्केट? You want to know about courses that you can pursue for to be able to invest in market? Right. For some courses, analysis courses. हवीर जी, बेसिकली देखिए उसमें तो जो टेक्निकल एनालिसिस की आप बात करें, इट्स ए वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ नॉलेज एंड बेसिकली यू कैन से एक्सपर्टीज, so you have to go approach to some institutes जो इसके ऊपर आपको एजुकेट कर सकते हैं, और कुछ इस तरह की इन्वेस्टर फर्म्स भी हैं वो भी इसके लिए गाइड करती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने कहा है कि डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन डीबीआईसी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने एक कॉमन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनाने पर चर्चा की है। And let's move on to commodities. Oil prices today fell more than 3%. Crude prices fell after the OPEC Plus countries overcame internal divisions and agreed to boost output. Oil prices logged sharp decline amid worries of crude surplus as COVID-19 infections rise in many countries. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $71.30 per barrel, while WTI crude prices were around $69.50 per barrel. Mr. Singh, overall a good news, on the crude oil prices front, because till last week we were seeing that the prices had touched almost at beyond $76 a barrel, and now today we see that it's been quite a sharp down, fall in the prices. So, can the consumers here in India expect this benefit to be passed on in the coming days? Can we expect that, or will the overall excise duty that will continue to affect the prices? No, if prices goes down in the international market, our lending price goes down. It has a direct impact on consumer price also, and it's a sharp change comes there, because there is the base price. After over and above that, we apply different kind of taxes, whether it is excise duty or VAT or special excise duty. All kind of taxes goes only after active final prices. If the active final prices goes down, it will give basically a relief to the consumer industry. And even in the last few days, the Minister of Petroleum and Natural Gas also requested to oil producing countries that they should think about a country like India which depends on imports alone. So I think this OPEC Plus countries resolve some issues and decided to increase the production. On the other hand, again, I'm repeating the same thing, that this coronavirus infection increasing. There is a signal that if economic activities gets affected, the consumption of the oil will go down. All these two things, I think, made this reduction on crude prices, and definitely we are one of the biggest importers, so we get benefit, and the benefit we will pass to the consumer. और अब नजर डाल लेते हैं सोने की कीमतों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट के बीच आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 100 रुपए सस्ता हुआ। अगस्त माह के सौदे के लिए सोना 47,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी 750 रुपए टूटकर सितंबर माह के अनुबंधों के लिए 67,565 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। हरवीर सिंह जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अब चलते चलते मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से। Domestic stocks logged losses of more than 1%. Sensex finishes below 52,600. Nifty settles below 15,800 level. Rupee weakens 31 paisa against the US dollar. And Brent crude prices declined to trade around $71.60. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back at 3 p.m. tomorrow with Money Matters. Do join us then. Till then, namaskar. नमस्कार।
Market Mantra.